Now we will see the comparison test, meaning uh, sorry, convergent test. A big mistake at the starting of the video. Convergent test यानी कि we want to figure out that the series is going to converge or not. We are not bothering about the value of the series, right? We have seen in the last video that the infinite geometric series has sum equal to 1 upon 1 minus r, right? So that was one thing, one problem with the infinite series, one kind of problems which means questions. But now the second kind of questions from the infinite series comes that can you check the given series, given infinite series precisely, I am saying, can you check the given infinite series is going to converge or not? So we have mainly how many methods we have here? Three methods. Yeah, mainly we have three methods that we generally see in this course. There can be many other methods, but we are concerned with only three methods that we will use here, right? So every method has its condition, some restrictions, so you have to remember those conditions and restrictions, and every method is used at different kind of places, and there is a possibility that at some places more than one method can be used, right? So okay, that's fine. So let's start with the first method. uh, that is first method is the comparison test. So as the name suggests, we are going to compare with the given series. We are given a series, right? Like I have written here, we are given a series m1 plus m2 plus m3 go on to infinity. So we are given this series and we are asked that this series is converging or not. हमें ये पूछा गया है कि ये सीरीज कन्वर्ज होगी कि नहीं होगी, बस इतना सा हमें पता है. तो हमें अब कंपेयर करना है इस सीरीज को किसी ऐसी सीरीज से जो तेरे मेमोरी में है और तुझे पता है कि यार वो सीरीज कन्वर्ज करती है, राइट? तो इसीलिए हमने पहले लेक्चर में एक कन्वर्जिंग सीरीज देखी थी और एक डाइवर्जिंग सीरीज देखी थी. कन्वर्जिंग सीरीज कौन सी देखी थी हमने? ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका जो कॉमन रेशियो है उसका मॉड लेस देन 1 हो. हमने ऐसी एक सीरीज़ देखी थी वो जो कि कन्वर्जिंग है. हमने साथ ही साथ लास्ट वीडियो में ये वाली सीरीज भी देखी थी जो डाइवर्ज करती है, दैट इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीरीज, राइट? हार्मोनिक सीरीज. तो हम इन दोनों सीरीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और ज़रूरी नहीं है कि यही तो सीरीज़ का फ़ायदा उठाएं हम, लेकिन हमने वो दो पढ़ी थी तो हम उन दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं कंपेयर करने के लिए जो सीरीज़ हमें क्वेश्चन में दी होगी. सो यहाँ पर वही लिखा है, let m1 plus m2 plus m3 then going to infinite, we are given this series of positive terms. ध्यान रखना positive terms. I'm really sorry. This is the series we already know that converges. Sorry, some mistake. So this m1 plus m2 plus m3 going to infinity, this is the series that you already know that it converges, right? It converges. Now then the series you are testing in your question, let's suppose that is like this, a1 plus a2 plus a3 and going to infinite, so on. So is absolutely convergent if the एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये मॉड, ध्यान रखना. जब ये मॉड वैल्यू हमारी नॉन सीरीज से है छोटा होगा, ये किसी एक टर्म को अगर आप यहाँ से लोगे और उसका मॉड लोगे, अगर वो मॉड हमारी जो ये नॉन सीरीज थी उससे छोटा है फॉर ऑल एन, ऐसा नहीं कि किसी एक के लिए. मान ले तो यहाँ पर गया a 1001 पर गया और यहाँ पर तो गया m 1001 पर गया. तो अब तूने चेक किया कि ये कितना है और ये कितना है. अगर ये जो हम जो चेक कर रहे हैं वो छोटा आया है इससे, है ना, तो ये आगे आने वाले जितने भी टर्म्स होंगे 1001 से आने वाले आगे जितने भी टर्म्स होंगे
वो सबको ये ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा कि ये हमेशा छोटा हो इससे, ध्यान देना। अब हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2-3 टर्म्स मैच ना कर रहे हो ये कंडीशन को, लेकिन अगर एक टाइम के बाद वो मैच करना स्टार्ट कर दें, अगर एक पॉइंट के बाद वो मैच करना स्टार्ट कर दें, तो दे हैव टू मैच फॉर ऑल वैल्यू अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट अ पॉइंट if they start to match this condition then they have to match for every single value from that point। वही मैंने लिखा है कि जब ये जो वैल्यू है जब ये छोटी हो हमारे नॉन सीरीज से फॉर ऑल एन फ्रॉम सम पॉइंट, कोई एक पॉइंट हो सकता है, वो हमें कन्फर्म नहीं है, वो सीरीज देख के हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसका हम सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेंगे फ्रॉम हियर 1/n फैक्टोरियल। ये हमें सीरीज गिवन है ना, जो हमने ऊपर लिखा था a1 + a2 + a3 डैश डैश, वो यहाँ पर क्या है 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, है ना, गोइंग टू इन्फिनिटी। सो फैक्टोरियल को अगर आप खोलोगे तो 1/1, 1/2, 1/6, 1/24, 1/120, so on। 5 फैक्टोरियल इज 120। अब यू हैव टू थिंक कि कौन सी सीरीज में यूज कर सकता हूँ कंपैरिजन के लिए, ये सबसे हार्ड पार्ट है यहाँ पर। तो इसीलिए आई एम प्रीटी श्योर कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, इस मतलब एटलीस्ट आई एम जस्ट गेसिंग कि कंपैरिजन टेस्ट से नहीं आएगा, बाकी टेस्ट से आएगा जो इजी है इससे। तो सबसे हार्ड टेस्ट यही वाला है, तो क्योंकि यहाँ पे तुम्हें गेस करना है कि कौन सी सीरीज़ आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स टेक सीरीज लाइक दिस 1/2 की पावर n। एक मोटिवेशन ये हो सकता है कि इसको लेने का कि न्यूमरेटर में सबका 1 है, इसका भी न्यूमरेटर में 1 ही है, लेकिन हम 2 की पावर n ले रहे हैं, तो ठीक है कुछ और भी ले सकते थे, बट ये काम कर जाएगा, देख कैसे। और फ्रॉम n = 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, अगर तो इसको ओपन करेगा तो क्या आएगा 2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, so on। Now look these are age, right, a1 a2 like this, जो हमने ऊपर नोटेशन यूज किया उसको फॉलो करना चाह रहा हूँ मैं, और these are m1 m2 and so on, right। So if you see m1 is half, a1 is 1, समझ में आ रहा है ना। m2 is 1/4, a2 is half, m3 is 1/8, a3 is 1/6। मैं कंपेयर करूँगा अभी। m4 is 1/16 and a4 is 1/24, राइट। स्टार्टिंग के 4-5 से समझ में आ जाएगा। 1/32, a5 is 1/120। Now compare from this value here, m1 is less than a1, correct, m2 is less than a2, correct, m3 is less than wait we are going opposite, yeah I think it's correct, है ना, it is correct। Now from here onwards look, m4 is greater than a4, क्योंकि m4 का डिनोमिनेटर छोटा है और इसका बड़ा है। ठीक है, फ्रॉम हियर ऑल्सो m5 इज ग्रेटर देन a5। अब तो देखेगा ना इससे आगे के लिए हर एक चीज़ के लिए m मान ली k आया, वो ग्रेटर देन होगा a k से। तो हियर ऑनवर्ड्स यहाँ से नीचे के लिए हमेशा क्या हो रहा है कि जो m है और p मान लो कोई हमने इंडेक्स ले लिया, वो हमेशा ग्रेटर देन है a p से। और इसको अगर तो जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिख रखी थी
उस तरीके से लिखेगा तो इसको कैसे लिखेगा, इसको AP इज़ लेस देन MP। तो ये कंडीशन चाहिए थी हमें और ये कंडीशन हमें मिल गई। तो ये कंडीशन होने पर क्या क्या आता है, कन्वर्जेंट। तो देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने की क्या है यहाँ पर कि स्टार्टिंग के कुछ फाइनाइट टर्म्स, यहाँ पर तो 3 ही हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी और प्रॉब्लम में स्टार्टिंग के मान ले 1000 टर्म्स ऐसे आए जहाँ पर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, कभी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ये बड़ा हो जा रहा है, कभी ये छोटा हो जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा लाइक जैसे यहाँ पर आ गया, उसके बाद सारे के सारे टर्म्स विल फॉलो दिस कंडीशन। सो दिस इज़ हाउ वी कैन चेक कंपैरिजन टेस्ट। ये है कन्वर्जेंस के लिए। इसका जो दूसरा पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है डाइवर्जेंस के लिए। ध्यान देना, कंपैरिजन टेस्ट के लिए दो मेथड्स, दो काइंड्स ऑफ कंपैरिजन से, एक है डाइवर्जेंट के लिए, एक है कन्वर्जेंट के लिए। कन्वर्जेंट हमने देख लिया, अब डाइवर्जेंट वाला ये है। अब भी हम यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। अब हमें मान लो कि कोई एक ऐसी सीरीज पता है जो डाइवर्ज करती है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, वो हार्मोनिक सीरीज थी। और उसके बाद जो सीरीज तुमको दे रखी है A1 A2 A3 उसको लिख लो। और अगर जस्ट ऊपर वाले कंडीशन का उल्टा, अगर ये बड़ा आता है हमारे नॉन सीरीज से, तो फ्रॉम सम पॉइंट ऑन, तो ये सीरीज हमारी डाइवर्ज कर जाएगी। इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हैं हम। एग्जांपल हम क्या देखेंगे कि सपोज कर ले हमारे पास एक सीरीज़ है ऐसे n पावर p करके, और n इक्वल टू 1 से लेके इन्फाइनाइट है, और p की वैल्यू 0.9 मान ले, ठीक है। अब हमें ऐसे दे रखा है, तो इसको हम अगर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, वो 1/1 पावर p, 1/2 पावर p, 1/3 पावर p, डैश 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 1/n पावर p करते 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 आगे चले जाएगा, ठीक है। तो लुक, दिस इज लाइक दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। नाउ वी विल कंपेयर विथ द हार्मोनिक सीरीज। लेट्स कंपेयर इट। हार्मोनिक सीरीज, राइट। तो हार्मोनिक सीरीज़ क्या बोलती है हमें, 1/n जो है, n इक्वल टू 1 से इन्फाइनाइट, सो इट इज़ लाइक 1 + 1/2 + 1/3 गोइंग टू 1/n and it continues to infinity. Now look, I am not I'm not doing the same lengthy calculation as I did before. So here look, d1 is 1 and a1 is 1/1 p, 1 पावर p, ठीक है। तो देख p इज़ लेस देन 1, ठीक है, p इज़ लेस देन 1, और 1 की पावर p है और p इज़ लेस देन 1 है, तो दिस विल बी लेस देन 1, दिस होल थिंग विल बी लेस देन 1, है ना। किसी भी नंबर की पावर, अगर a एक नंबर है, उसकी पावर अगर x, जो x लेस देन अगर 1 हो गई, तो वो ओवरऑल नंबर 1 से कम हो जाता है, ठीक है। इसको तो देख सकता है कहीं भी। सो अगर p लेस देन 1 है, क्योंकि हमें दे रखा है यहाँ पर 0.9, तो अब देख, ये जो है डिनोमिनेटर इज लेस देन 1, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर लेस देन 1 है, ठीक है। तो अब कॉस यहाँ पर क्या होगा कि फ्रॉम है, इसको यहाँ ले लेते हैं। तो अब कॉस यहाँ पर क्या है, A1 इज ग्रेटर देन D1, D2 देख, D2 इज 1/2 एंड A2 देख ऊपर से 1/2 की पावर p। अगेन सेम कंसेप्ट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर p है। 2 की पावर p जो है, इसकी वैल्यू 2 से कम होगी, क्योंकि पावर लेस देन 0 है। अगर इसकी वैल्यू 2 से कम होगी, तो जब छोटी चीज़ से डिवाइड करेगा तो वो चीज़ बड़ी हो जाएगी ओवरऑल। तो A2 इज ग्रेटर देन D2 एंड सो ऑन। सो यू सी दैट यहाँ पर पहले ही टर्म से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आगे तक हमेशा के लिए, so on. So we can see that an is greater than bn, so it is diverging.
तो याद करने का तरीका कैसे देखिए, याद ऐसे कर सकता है कि डाइवर्स का मतलब बड़ा होना, बहुत बड़ी चीज़ होने, बहुत इन्फिनिट तक जाना। इन्फिनिट चीज़ें जब इन्फिनिट हो जाती हैं तब डाइवर्स होती हैं। तो जब हमारी जो हम जिस सीरीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसके टर्म अगर बड़े हो रहे हैं हमारे टेस्टिंग सीरीज से, है ना, मतलब टेस्टिंग सीरीज मतलब जिससे हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, अगर उससे चीज़ें बड़ी हो रही है तो डाइवर्जेंट, और जिससे हम कंपेयर करना चाह रहे हैं अगर उससे चीज़ें छोटी हो रही हैं तो कन्वर्जेंट, है ना। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो यहाँ पे जियोमेट्रिक से कंपेयर किया था जो कि m है, और अगर चीज़ें इससे छोटी हो रही हैं, जो ये A4 है, छोटा है किससे, M4 से, छोटी होंगी तो कन्वर्जेंट, बड़ी होंगी तो डाइवर्जेंट। तो ये पूरा का पूरा कंपैरिजन टेस्ट आता है। बट एक बार इसको समझ लेना आसानी से, थोड़ा बहुत, बाकी मुझे भरोसा है, आई डोंट नो, मैं आई डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, हु नोज, फाइन।